Welcome back, students. Welcome back for the another session. We have seen that what is first shifting property. We have seen the statement of first shifting property. Now we are going to take the examples on that first shifting property. So starting with the first example. Example number 1 is there in front of us. Find a Laplace transform. Find Laplace transform of e raised to minus 3t in the bracket 2 cos phi t minus 3 sin phi t. So there is a procedure to solve this example. What we have to do first? First we have to consider that let f of t मान लेना होता है हमें कि main function क्या है. So this is our main function. You can see that this is our main function. And what is the role of this e raised to minus 3t? It will have the role of first shifting only. At the end we are using this property. Basically what we are doing, we are considering that कि यहाँ पे फंक्शन कौन है, उसके बाद में प्रॉपर्टी का रोल आता है. These both are not the question. Question is only this. On that question, property is applied. Okay. Now we have the function 2 cos phi t minus 3 sin phi. This is our question. Now, immediately after writing this question, immediately apply transform on both sides. Laplace transform apply करते हैं. Apply Laplace transform on both sides. So what will happen? Here you will get L of f of t. You can see that कि यहाँ पे अभी हमें देखना है कि f of t का जो रोल है, ये रोल कैसे चेंज होगा. This is our f of t. Yes or no? This is the given f of t. And now 2 is the constant. Laplace will be applied on phi t only, cos phi t. Minus 3 will be constant. Laplace will be applied on sin phi t. Now what is there? Our duty to find out the formula. We have 7 different formulas of Laplace. Only 7 formulas. Out of that, all 7 formulas. First is cos phi t. What will be the Laplace of cos phi t? क्या आएगा Laplace of cos phi t? I already told that s upon cos का जो s है उसके ऊपर फोकस करना है. S upon s square plus a square. यहाँ पे a की पोजीशन में 5 है. You can write 25. 5 का square. We will close this bracket. Minus 3 again sin phi t. What is the Laplace of sin phi t? A upon. यहाँ पे cos के Laplace में न्यूमरेटर में s प्रेजेंट होता है, लेकिन साइन के लैप्लास में न्यूमरेटर में a प्रेजेंट होता है. सो a स्टैंड्स फॉर 5. 5 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है. लैप्लास ऑफ साइन एंड कॉस अगर आपको पूछा तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है. क्या होता है? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. a क्या वैल्यू आपको ढूंढना है. यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर कर दिया. यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर कर दिया. Now you know that base same है सर, हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं. यस ऑब्वियसली न्यूमरेटर का अलजेब्रिक रिएक्शन हो जाएगा. 2s minus 3 डिवाइडेड बाय द कॉमन बेस वी हैव. यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो 2 है ये सिर्फ मल्टीप्लाई है s को, एंड ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई है 5 को. सो अल्टीमेटली 3 5s are 15 we have to write here. So 2s minus 15 s square plus 25 is the answer of f of t. ये हमारा f of s है. ठीक है. अभी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अभी हमें क्या अप्लाई करना है. अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग. बहुत सिंपल है. सो व्हाट आई डिड हियर, आई हैव डिड दैट कि यहाँ पे पहले तो हमने एफ ऑफ टी को हमने सॉल्व कर दिया. अभी एफ ऑफ टी का रोल कंप्लीट हो गया. बाद में बचा ई रेस्ट टू माइनस 3t. अभी इस ई रेस्ट टू माइनस 3t के वजह से हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. दैट इज रोल ऑफ ई रेस्ट टू माइनस 3. सो व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? सिंपल प्रॉपर्टी इज देयर.
अगर कोई फंक्शन को, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई फंक्शन के आगे एफ ऑफ टी के आगे कोई एक्सपोनेंशियल टर्म होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके आंसर में से ए को माइनस कर देना। ए कौन हो सकता है, यहाँ पे ए होगा ई का पावर। अगर ई का पावर माइनस है तो शिफ्टिंग प्लस की होनी चाहिए। रेज योर हैंड, यू अंडरस्टैंड? अगर शिफ्टिंग का, अगर ई का पावर निगेटिव, यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट शिफ्टिंग का ये स्टेटमेंट है, पावर पॉजिटिव है इसलिए आपका फंक्शन में से माइनस हो रहा है। लेकिन अगर पावर नेगेटिव होता है, if power is negative, then we have to subtract from the function. That you have to keep it in your mind कि अगर लैप्लास को अगर निगेटिव शिफ्टिंग करनी होगी तो कैसा होगा, देखते हैं। वेरी सिंपल, एल ऑफ, यहाँ पे ई रेस्ट माइनस 3t को अप्लाई कर देंगे एफ ऑफ टी के ऊपर, ठीक है। एफ ऑफ टी का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे, अभी चेंजेस देखो, 2 टाइम्स एस प्लस 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय s plus 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 25, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या हुआ, जहां जहां पे भी s था शिफ्टिंग में क्या बोला है, उसमें से a माइनस कर देना। wherever s is there I have subtracted that minus 3 from that number. so जब माइनस ऑफ माइनस 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वेरी सिंपल। so this is all about the example number 4 on the basis of first shifting problem. Completed the example successfully. You just see that कि यहाँ पे पहले लैप्लास सॉल्व करना है, बाद में आखिरी में at the end we have to apply first shifting problem. That's all. Or you can take a screenshot or I will give you time to write down this example. Now we will go for the second example. You just see that what is the second example. Example number second. Write down example number second. Again, find the Laplace transform. Find Laplace transform. We can have a short form of e to the power 2t cos square t. Is the example. Yes. Again, you just tell me that कि यहाँ पे main function कौन हो सकता है. What is the main function here? तो यहाँ पे मेन फंक्शन होगा लेट एफ ऑफ टी को मान लेना है हमें कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि सर ई का जो रोल है वो आखिरी में प्ले होने वाला है। यहाँ पे मेन फंक्शन है हमारा कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी का जब हम लैप्लास लेंगे तो हमें 7 फॉर्मूले में से कहीं पे भी कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। यू मेक क्लियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर हमने ढूंढा, हमें ऑल दैट 7 फॉर्मूले आउट ऑफ दैट 7 कहीं पे भी कॉस स्क्वायर टी नहीं मिल रहा। आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वी हैव सीन द फॉर्मूला इन द लीनियर ऑर्डर, cos t sin t। स्क्वायर के क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट मींस व्हाट, फर्स्ट वी हैव टू यूज सम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन टू कन्वर्ट इनटू द लीनियर फॉर्म। तो आपको सभी को एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। If you use this formula, then you will convert quadratic squaretic form of cos into the linear form, जो कि लैप्लास ने ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है। स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है लेकिन cos का फॉर्मूला है हमारे पास। Once we will use this formula, we can able to take the Laplace. You just see that 1 plus cos 2t यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर इन टर्म्स ऑफ t है तो t लिखना होगा, थीटा होगा, थीटा लिखना होगा, डिवाइडेड बाय 2। Now you can apply the Laplace on both sides. So apply, you just see that I'm going to apply Laplace on both sides. So ये 2 जो होता है, ये 2 को बाहर निकालेंगे हम। कौन से 2 को? नीचे डिनोमिनेटर वाले 2 को हम बाहर निकालेंगे। If you do like that, हमारे फंक्शंस अवेलेबल क्या होते हैं? देखो लैप्लास दोनों साइड में ऑन बोथ साइड अप्लाई करना होता है। ऑन बोथ साइड हमने अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1/2 हमें बाहर निकालना है, ठीक है। अभी लैप्लास जो एल ऑपरेटर है इसे अंदर लाना है, 1 पे अप्लाई करना है और cos 2t पे अप्लाई करना है, और 1 का भी लैप्लास अवेलेबल है एज वेल एज हमारे पास cos 2t का भी लैप्लास अवेलेबल है। यस और नो गाइस? यस और नो? टेल मी दैट कि 1 का लैप्लास क्या है? 1/s है सर, फर्स्ट फॉर्मूला। cos 2t का लैप्लास क्या है सर? s/s² + 4 आएगा सर। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है
तो आपने लिख के दिया है कि cos 80 का जो फॉर्मूला था s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करना होगा। दिस इज द f ऑफ s। ये हमारा सॉल्व हो गया एग्जांपल। लेकिन नाउ देयर कम्स अ रोल ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑन बोथ साइड। यू नो दैट क्या होता है ये प्रॉपर्टी, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं सिंपल कर देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का जो रोल होता है वो बहुत सिंपल। सिंपली हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली जहां जहां पे भी एस है वहां पे एस में से ई का पावर माइनस कर देना होता है। अभी ई का पावर देख लेते क्या है, ई रेस टू 2t है, मतलब 2 माइनस करना होगा हमें आए हुए आंसर में से। जो भी आंसर आपका आया हुआ है ऊपर, ये देखो ये आंसर दिख रहा है आपको, ये सारे आंसर में से 2 माइनस कर देना, ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग। बहुत सिंपल। e raised to 2t applied on f of t, then we will get 1 upon 2 in a bracket 1 upon s minus 2 plus s minus 2 wherever s is there। जहां जहां पे मुझे s मिलेगा मैं s minus 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? s minus 2। so wherever s is there I have to replace it by s minus 2। that's all, that's our final answer। no more simplification। यहाँ पे आगे सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, आप यही पे क्लोज कर सकते हैं। You can see that successfully we have solved the second example। You might have take a screenshot or you can write down। Okay, thank you। Welcome back student, 2 examples successfully completed। Now we will go for example number 3rd। Be ready for that। So what is example number 3rd? Again find the Laplace transform of the function, that is very important, you can make it IMP। According to my opinion, you can have a name of me here। According to my opinion, this might be very IMP example, e to the power 4t in a bracket sin 2t into cos 3t। यहाँ पे 2-3 नए कॉन्सेप्ट हम देखने वाले कि लैप्लास किस प्रकार ऑपरेट होगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि सर एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे। तो एवरीबडी शुड नो दैट कि सर एफ ऑफ टी जो होगा वो होगा साइन 2t इंटू कॉस 3t एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू एग्जाम्पल, एज पर फर्स्ट। क्योंकि ये वाला तो लास्ट में रोल प्ले करेगा सर, इसका रोल हमें पता है s माइनस 4 s माइनस 4 s माइनस 4। e to the power 4t will play the role of first shifting property। so हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एफ ऑफ टी को सॉल्व करके रखना है। तभी एफ ऑफ टी में साइन 2t भी है कॉस 3t भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इस वजह से हमें डायरेक्ट लैप्लास नहीं अप्लाई करते आएगा। डिस्पाइट दैट कि हमें ऑलरेडी साइन 2t 3t के फॉर्मूले हैं हमारे पास, then also we cannot apply the formula directly due to this multiplication। जैसे कि डेरिवेटिव में भी हम डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं ले पाते ना, yes or no, we have to use the u into v rule like that। in integration also we cannot use the direct integration कि सर x का ले लो फिर e raised to x का ले लो, सर x का ले लो फिर e raised to x का ले लो, not like that। so as in derivative and integration we cannot directly apply that function as a differentiable or integrable, like that in Laplace also we cannot apply directly। तो रूल भी नहीं है सर हमारे पास तो, यस रूल भी नहीं है। जैसे डेरिवेटिव में u इंटू वी रूल है, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स रूल है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई रूल नहीं है। तो इस वजह से हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर फोकस करेंगे कि कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी का, जो कि रिलेशन कन्वर्ट करके दे सकते हैं। यस है, आई विल गिव यू द फॉर्मूला, यू जस्ट फोकस ऑन इट, आई विल गिव यू द फॉर्मूला। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला आपको याद है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, साइन साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कितना सिंपल फॉर्मूला। यू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अभी इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे जो कि इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लैप्लास ऑपरेट नहीं हो पा रहा। जब तक ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड नहीं होता लैप्लास हम नहीं ले सकते।
आई कैन नॉट राइट अप्लाई लैप्लास जब तक हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। तो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए हम 1/2 लिख देंगे, इस 2 को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में, 2 मल्टीप्लाई इस साइड में डिवाइड हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, कैन आई राइट 5t? ऑब्वियसली सर, 2t प्लस 3t 5t होगा, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी माइनस t. Raise your hand, you understand? Sin minus theta is a minus sin theta. I'll give you 1 second back. You have to understand कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपका जो फंक्शन है 2 sin a into cos b, sin a plus b plus sin a minus b. So you have to decide that which one is a and which one is b. So a is 2t, b is 3t. So subtraction minus t आएगा, लेकिन हमें और एक फॉर्मूला पता है कि सर साइन का निगेटिव जो साइन होता है वो बाहर आ जाता है। यस, ये रिमेम्बर। लेकिन अगर आप कॉस के कम होता सोगे तो कॉस का निगेटिव साइन कभी बाहर नहीं आता, वो अंदर ही प्लस हो जाता है, ये फॉर्मूला। तो ऊपर वाले को प्रेफर करेंगे। क्या फॉर्मूला है? 1/2 साइन 5t माइनस साइन टी। यू अंडरस्टैंड? सब समझ में आ गया? माइनस साइन बाहर आ गया। अभी हम लैप्लास अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? दे आर डिफर बाय माइनस साइन। इनिशियली देयर वाज अ प्रोडक्ट, नाउ देयर इज a multiplication, there is a subtraction, so it is okay for us. subtraction addition हमें चल सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के वक्त हम लैप्लास नहीं अप्लाई कर सकते, ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस यूज कर देते हैं, अप्लाई लैप्लास। अभी रेडी होना बहुत चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने ये प्रोडक्ट को मिटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया। जैसे कि फॉर्मूले में क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, वही कर दिया, दोनों की एडिशन कर दी, फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन, और 2 को मल्टीप्लाई था, डिवाइड में ले लिया। नाउ यू कैन अप्लाई। अभी आप साइन 5t का लैप्लास मुझे बता सकते हो सर क्या होगा? 1/2 तो कांस्टेंट होता है, लैप्लास अप्लाई हो जाएगा आपके साइन 5t के ऊपर, बाद में अप्लाई हो जाएगा आपके साइन t के ऊपर। वेरी सिंपल, you just see that what I am going to tell. तो जब साइन 5t पे हम लैप्लास अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी तो लैप्लास होगा ना, लैप्लास हम एफ ऑफ टी का ले रहे हैं ना। फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ एफ ऑफ टी का, एफ ऑफ टी का फाइनल आंसर ए अपॉन साइन 5t का लैप्लास क्या है सर? ए अपॉन एस। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। आई विल नॉट अगेन टेल यू दैट कि सर ऊपर ए होता है साइन के वक्त, नीचे तो स्क्वायर करना होता है, 25 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए। यहाँ पे ए कितना है? 1 है सर, साइन टी मतलब 1 है, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। रेज योर हैंड, यू अंडरस्टैंड? अभी इस एफ ऑफ एस का हम क्या करेंगे? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल। व्हाट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? कौन बताएगा? अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इफ यू अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देख लेना कि शिफ्टिंग कौन कर रहा है। शिफ्टिंग कर रहा है e raised to 4t, आप देख सकते हो ऊपर ये वाला। तो e raised to 4t मतलब 4 माइनस करना है हमें, जहां जहां पे भी s होगा वहां पे हम 4 माइनस करेंगे। सो फाइनली 1/2 इन अ ब्रैकेट, देखो हम अप्लाई कर रहे हैं, e raised to 4t का रोल प्ले हो रहा है। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि रोल कैसा प्ले होता है। जहां पे भी s दिखेगा ना, मैं उस s को क्या करूंगा? s-4 लिखूंगा। अगर वो स्क्वायर होता है एज इट इज रख देंगे 20 प्लस, नहीं माइनस है, 1/s-4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। इफ यू अंडरस्टैंड जस्ट रेज योर हैंड। इफ यू अंडरस्टैंड रियली, लास्ट वाली स्टेप बहुत सिंपल है। जहां पे भी s है ना, s-4 लिख दो, क्योंकि 4 e का पावर 4 है इसलिए s-4 s-4 s-4। This is all about example number 4. Third, you have to write down this example. So now we will get some another examples. We are going to take another example. So you just see that
और बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम जब तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर लेते। और वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स है हमारे पास ऑलरेडी। कॉन्सेप्ट एक ही कि आपको लैपलास आना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर 4 है सिंपल वाला, विदाउट फर्स्ट शिफ्टिंग वाला भी हम देख सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखो फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टू टी। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहीं पे भी आप ई का अगर पावर लगा देते हो सपोज टू टी, तो ये आखिरी में आपको सॉल्व करना होगा, सिंपली एस माइनस टू करना होगा। लेकिन ओनली दिस टाइप आल्सो एग्जांपल विल कम इन द एग्जामिनेशन विदाउट यूजिंग अ फर्स्ट शिफ्टिंग। यहाँ पे कोई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, सिंपली आपको लैपलास सॉल्व करना है। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व होता है लैपलास। सबसे पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें मान लेना है कि लेट एफ ऑफ टी क्या होगा हमारा, एफ ऑफ टी होगा साइन क्यूब टू टी होगा हमारा, क्या होगा हमारा साइन क्यूब टू टी। जब हम देखेंगे साइन क्यूब टू टी को, तो यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला नहीं है अवेलेबल साइन क्यूब टू टी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करना होगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी मैंने फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, you have to remember that all formula, you have to mug up that formula। यहाँ पे और एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, साइन क्यूब थीटा का। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। यहाँ पे एक हम क्या करते हैं, विंडो बना लेते हैं, एक विंडो बना लेते हैं। इस विंडो में आपको हिंट मिल जाएगी, उस हिंट को यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो नॉन लीनियर, मतलब ये क्यूबिक है ना, जब तक ये क्यूब नहीं हटेगा हम लैपलास नहीं ले सकते ना, क्योंकि लैपलास साइन 2t का अवेलेबल है, साइन 3t का अवेलेबल है, क्यूब का नहीं है अवेलेबल। ये आपको क्लियर करना होगा माइंड में। इस और स्क्वायर का क्यूब का नहीं है ना हमारे पास फॉर्मूला, यस नहीं है। जब तक हम इसे लीनियर नहीं करते हम लैपलास को नहीं अप्लाई कर सकते। सीधा सीधा मैं लीनियर कैसे करता हूँ, आई हैव अ फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से मुझे ये साइन क्यूब वाला सेपरेट करना, ये माइनस इक्वल टू में चला जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, और ये जो प्लस है ना ये इधर आ जाएगा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ये बन गया सब्स्टिट्यूशन। अभी हमें क्या करना है, सिंपली ये 4 को डिवाइड में भेज देना, 1/4 इन ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। यहाँ पे कहीं पे भी क्यूब नहीं है, फॉर्मूला फिर से एक बार रीड करता हूँ, साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे क्यूब का सब्स्टिट्यूशन लग रहा है ना हमें, इसलिए इसे यहाँ पे ट्रांसफर करते, इसे इधर ट्रांसफर कर देते। इफ यू डू लाइक दैट वी विल गेट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हुआ हमारा फॉर्मूला साइन क्यूब थीटा का। अभी थीटा के जगह पे हमें 2t रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल। यही फॉर्मूला जहां जहां पे भी थीटा है वहां पे 2t में रिप्लेस करता हूं। थोड़ा कॉपरेट करना होगा हम आपको कि सर समझ में आ रहा है, थीटा इस बार थीटा हमें 2t दिया हुआ है, ठीक है, थीटा के पोजीशन में हमें 2t को रिप्लेस करना है। फॉर्मूला आपने बना दिया कि सर क्यूब का ये सब्स्टिट्यूशन होगा। माइंड ओपन रख के आप सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप आपको लर्न रखनी है, बहुत सिंपल सिर्फ स्टेप है। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ, आपको ध्यान देना, ठीक है। 1/4 3 साइन 2t माइनस साइन 6t। सर 6 कहाँ से आ गया, ये 2 वाला और ये 3 वाला 6 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 3 थीटा को जब आप 2t रिप्लेस करोगे तो ऑब्वियसली 3 2 6 हो जाएगा ना। तो इसके ऊपर अभी हम इजीली लैपलास अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम सेंटेंस यूज करेंगे, अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। So Laplace of f of t is equal to 1/4, 3 भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो 3 लैपलास अप्लाई होगा साइन 2t के ऊपर, माइनस लैपलास अप्लाई हो जाएगा आपका साइन 6t के ऊपर। आपको बताना है
कि sin 2t का लैप्लास क्या आएगा। योर ड्यूटी इज दैट, यहाँ पे बहुत सिंपल स्टेप है, 1/4 को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। देखो अभी 3 एज इट इज है, sin 2t का लैप्लास आएगा आपका 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36, 6 का स्क्वायर कर लो। जब हम ये 3 to the 6 करेंगे, फाइनली वी विल गेट द आंसर। क्या आंसर आएगा देखो, 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। Raise your hand, you understand? This is our next example, that is fourth example of sin cube। यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं दे रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ कि अगर यू विल कम अक्रॉस साइन क्यूब, कॉस स्क्वायर तो देख लिया हमने, कॉस स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर फॉर्म में, वैसे हमें साइन क्यूब को पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जाके लैप्लास अप्लाई करना है। और उस लैप्लास में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, 7 फॉर्मूले में से साइन का फॉर्मूला क्या है सर। साइन का फॉर्मूला a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वन मोर टाइम, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट्स ऑल। Thank you guys, I hope you understand that today's session. We'll continue the next section tomorrow. Thank you.